हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, साथ साथ आप स्टडी भी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस, इसमें हमने पहले वाले सेशन में बेसिक डिस्कस किया था मैट्रिक्स क्या होती है एंड व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो स्टार्ट करते हैं और टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो देर आर सो मैनी टाइप ऑफ मैट्रिसेस लाइक कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स. So we will discuss about types of matrices one by one. First is column matrix. Column matrix क्या है? If a matrix has only one column, a matrix has only one column. For example, A is a matrix and its elements are 1, 2, 3. So in this matrix there is only one column, and we have discussed about order of a matrix. So if we want to write order of this matrix, then we know that how to write order of a matrix. Order of a matrix is row multiplied by column. So how many rows in this matrix? 1, 2, 3. So 3 rows and column is only 1. So it is a column matrix. Similarly, another matrix is B and its elements are 4, 5, 6, 7, 8. So how many columns? Only one column, C1. But rows are 5. First row, second row, third row, fourth row and fifth row. So its order is 5 by 1 because in this matrix there are 5 rows and only one column. So what is column matrix? Column matrix means a matrix is called column matrix if it has only one column. Next is a row matrix. Row matrix. Next is a row matrix. रो मैट्रिक्स क्या होती है? तो जैसे मैंने अभी कहा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रो मैट्रिक्स क्या होगी. सो ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो. तो रो मैट्रिक्स क्या होगी? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी, उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, X इज ए मैट्रिक्स एंड इट्स एलिमेंट्स आर 1, 2, 3. सो इन दिस मैट्रिक्स देर इज ओनली वन रो एंड कॉलम्स आर 3. देर इज ओनली वन रो, 1, 2, 3 and columns are 3, C1, C2, C3. So if we want to write order of this matrix, then we know that how to write order. In this matrix there is only one row and 3 columns, so its order is 1 by 3. Similarly, we can write another row matrix. Y is another matrix and its elements are 2, 0, 1. So such type of matrices are called row matrices. Next is square matrix. Square matrix is very important because next chapter, fourth chapter, determinants. For determinant, a matrix should be square matrix. So what is a square matrix? A matrix is called square matrix if its number of rows and number of columns are equal.
So a matrix is called square matrix if number of rows and number of columns are equal. तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसमें जितनी रो हैं उतने ही क्या होने चाहिए, कॉलम्स होने चाहिए. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके. जैसे एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 5. How many elements in this matrix? There is only one element. And how many rows in this matrix? One row. And how many columns? Only one column. So its order is 1 by 1. Number of rows and number of columns are equal because in this matrix there is only one row and one column. So it is a square matrix. Another example. Suppose B is a matrix and its elements are 3, 4, -1, 2. How many rows in this matrix? There are 2 rows, R1 and R2. And how many columns? 2 columns, C1 and C2. So its order is 2 by 2. It is also a square matrix. Another example, C is a matrix. Its elements are 3, -1, 4, 2, 0, 1, 1, 2, 3. Now, how many rows in this matrix? There are 3 rows, R1, R2, R3, and columns are 3, C1, C2, C3. So again, this matrix is also a square matrix and its order is 3 by 3 because there are 3 rows and 3 columns. All these matrices are square matrix. Next is a diagonal matrix. Diagonal matrix. So diagonal matrix क्या है? A square matrix A is equal to Aij. यहाँ Aij क्या है? We know that Aij is an element of a matrix A and Aij means ijth element of matrix A, or we can say jth element of ith row. For diagonal matrix, a matrix will be a square matrix. So a square matrix A is equal to Aij is called a diagonal matrix if Aij is equal to 0 where I is not equal to j. अब यहाँ बात आई कि I is not equal to j. So कौन से एलिमेंट होंगे? For example, A is a matrix A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. तो ये 3 by 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब यहाँ पर जो कंडीशन है Aij 0 होगा इफ़ I इज़ नॉट इक्वल टू j. तो ये कौन से एलिमेंट हैं? A11 की बात करें तो यहाँ पर I और j इक्वल हैं. A22 यहाँ I और j इक्वल हैं. A33 ये भी इक्वल हैं. अब ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? A12 के लिए तो ये एलिमेंट 0 होगा. A13 ये 0 होगा. A21 ये 0 होगा. A23 ये भी 0 होगा. A31 ये 0 होगा एंड A32 0 होगा. और ये इसका है डायगोनल. ये इसका क्या होगा? डायगोनल होगा. A11, A22, A33 आर एलिमेंट्स ऑफ इट्स डायगोनल. तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, ए मैट्रिक्स A इज गिवन और यहाँ पर जो डायगोनल के एलिमेंट हैं ये कोई भी नंबर या फंक्शन कोई भी नंबर हो सकते हैं. जैसे 5, 0, 0, 0, -3, 0, 0, 0, 1. इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे. इसमें डायगोनल के एलिमेंट डिफरेंट हैं और बाकी सभी एलिमेंट क्या हैं? 0. तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती हैं उनको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. So next is a scalar matrix. What is a scalar matrix? A square matrix A is equal to Aij of m by m order is called scalar matrix if Aij is equal to 0 where I is not equal to j and Aij is equal to k where I is equal to j for some constants. k क्या है यहाँ पे? कोई कांस्टेंट है बट यहाँ पर k की वैल्यू सेम होगी. तो अब यहाँ बात आई कि Aij इज इक्वल टू 0
ये कौन से एलिमेंट हैं, आई और जे इक्वल नहीं हैं, तो ये कौन से एलिमेंट होंगे? अभी हमने देखा डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो इसका मतलब आई और जे इक्वल हैं, तो ये एलिमेंट हो गए A11, A22, A33, यानी डायगोनल के एलिमेंट। तो डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होगा? K होगा, उसको हम बोलते हैं। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है, और जैसे यहाँ पे देखा कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और डायगोनल के एलिमेंट कोई कांस्टेंट है, बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे? ज़ीरो। तो जैसे हो सकता है √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। तो डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे वो सभी सेम एलिमेंट होंगे। जो A11 की वैल्यू है वही A22 होगा और वही A33 होगा, और डायगोनल के अलावा बाकी सभी एलिमेंट ज़ीरो होंगे। सिमिलरली X इज अनदर मैट्रिक्स एंड इट्स एलिमेंट्स आर 2 0 0 2। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये भी डायगोनल है इसका। तो डायगोनल के एलिमेंट कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बाकी एलिमेंट क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। तो ये दोनों मैट्रिक्स कैसी थी? स्क्वायर मैट्रिक्स थी, और इन्हीं को हम कहते हैं, और इसी टाइप की जो मैट्रिक्स हैं उनको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ आपने देखा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डायगोनल मैट्रिक्स एंड ए स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि सभी एलिमेंट डायगोनल के डिफरेंट हो सकते हैं, बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? सब डायगोनल के सभी एलिमेंट सेम होंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij of m by m order is called identity matrix if Aij is equal to 0 where I is not equal to j and Aij is equal to 1 where I is equal to j। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी अगर उसमें डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे? 1। Aij is equal to 1 if I is equal to j। जब I j के इक्वल होगा तो क्या कंडीशन होगी? इफ I is equal to j सो एलिमेंट्स आर A11, A22, A33। तो इनकी वैल्यू क्या होगी? 1। एंड Aij is equal to 0 if I is not equal to j। इट मीन्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। Suppose identity matrix of second order, then we can write I2, and if a matrix of third order, then we can write I3. So I2 is elements of diagonal are 1 1, so 1 1 and remaining elements are 0, so 0 0. So identity matrix of second order is 1 0 0 1. Similarly we can write I3. I3 is 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे? 1 होंगे, और बाकी सभी एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। नेक्स्ट इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के नाम से ही आपको पता है, इफ़ ऑल एंट्रीज आर जीरो ऑफ ए मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, जैसे ए मैट्रिक्स लिखी मैंने 0 0 0 0 0 0। तो ये कौन से ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है? 2/3। और हम जीरो मैट्रिक्स को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एक कंडीशन हो रहा है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। टू मैट्रिसेज आर इक्वल इफ देयर आर सम कंडीशंस। इफ A is a matrix of m by n order and B is another matrix of m by n order are equal if there are two conditions. First condition is order of A is equal to order of B. It means order should be same of both matrices. And second condition is Aij is equal to Bij for all I and j. It means
if Aij is equal to Bij, it means all corresponding elements are equal of matrices. So if both conditions are satisfied, then we can say both matrices are equal. For example, a matrix A of 2 by 3 order, A11, A12, A13, A21, A22 and A23. Similarly, B is another matrix, B11, B12, B13, B21, B22 and B23, and its order is also 2 by 3. Now if A and B are equal, if A is equal to B, then order of A and order of B are equal. So order of A is 2 by 3 and order of B is also 2 by 3. So first condition is satisfied. Now second condition is corresponding elements are equal. So if A is equal to B, then it is necessary A11 is equal to B11. Similarly, A12 is equal to B12 and A13 is equal to B13. And similarly, we can say A21 is equal to B21 and A22 is equal to B22 and A23 is equal to B23. It means if two matrices are equal, then their orders are equal and their corresponding elements are equal. अब हम इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं. Find the value of x, y, z where x plus y 2, 5 plus z, x minus y एंड सेकेंड मैट्रिक्स इसके एलिमेंट हैं 6, 2, 5. तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं. अब मैंने कहा कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी? टू मैट्रिसेज आर इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ऑर्डर्स ऑल्सो इक्वल. तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2. सेकेंड का ऑर्डर भी क्या है? 2 by 2. तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है. तब हम आगे बढ़ेंगे. अब हम बात करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की. तो यहाँ पर इसका एलिमेंट है x प्लस वाई, फर्स्ट एलिमेंट A11 जिसे हम कहें, और ये B11 है. तो दोनों कैसे होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. तो हम कहेंगे x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 6 के इक्वल. तो ये फर्स्ट कंडीशन आ गई. ये A12 2 है, ये B12 भी 2 है, तो ये दोनों इक्वल हैं. फिर हम बात करेंगे 5 प्लस जेड किसके इक्वल होना चाहिए? 5 के इक्वल. सो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल होगा 7 के. तो ये सेकंड कंडीशन एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, और ये थर्ड कंडीशन. अब हमें इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है. तो आप देख रहे हो कि सीधे सीधे अगर हम सेकंड की बात कर लें, पहले सेकंड की, तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और z की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 5 एंड 5 माइनस 5 इज़ 0. तो z की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई. अब बचते हैं हमारे पास में x एंड y की वैल्यूज़. तो इसके लिए हम कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 3. फर्स्ट और 3 इक्वेशन को हम यूज़ कर लेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 7. तो क्लास 10th में हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. तो वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मेथड भी था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था. तो उनकी हेल्प से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो जो इजी हैं एलिमिनेशन मेथड, उसकी हेल्प से हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो इन दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं. ऐड करने पे ये कैंसिल हो गया. यहाँ आ गया 2x और ये आ गया 13. तो x की वैल्यू आ गई 13/2 और x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में. तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 13/2 प्लस y इज इक्वल टू 6. इसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 13/2 और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1/2. इस तरीके से x, y और z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इनको हम इसमें पुट करके देखेंगे तो हमें दोनों मैट्रिक्स इक्वल मिलेंगी. इस तरीके से हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को यूज कर सकते हैं. एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. दो मैट्रिक्स गिवन हैं, दोनों इक्वल बता रखी हैं और कहा फाइंड x एंड y. यहाँ पर 4 ऑप्शन बता रखे हैं इसके, A, B, C एंड D. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. हमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में
2019-20 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं। 20 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के, जिनमें से 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और 5 फिल इन द ब्लैंक्स एंड 5 वन वर्ड के। तो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी तैयार करने चाहिए। तो क्वेश्चन है 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स हैं तो हमें कंडीशन अप्लाई कर लेनी है। दोनों का ऑर्डर क्या होगा 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे जब इक्वेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 3x + 7 = 0 यहाँ से। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। उसके बाद हम 5 को इक्वेट करेंगे y - 2 से। सो 5 = y - 2 और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। नेक्स्ट हम जब y + 1 को 8 से इक्वेट करें तो y + 1 की वैल्यू आएगी 8 के इक्वल और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ से तो y की वैल्यू 7 आ गई। अब यहाँ पर 2 - 3x किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के इक्वल। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -3x = 4 - 2, सो -3x = 2, सो x = -2/3। अब देख लेते हैं कि x भी सेम आ रहा है क्या। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू आ रही है -7/3 और यहाँ x की वैल्यू आ रही है -2/3। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू डिफरेंट नहीं आनी चाहिए। अगर वैल्यू -7/3 आ रही है तो ये भी -7/3 आनी चाहिए थी, और अगर ये -2/3 है तो ये भी -2/3 आनी चाहिए थी। एक वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं हैं। तो यहाँ पर इस x की वजह से यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम कहेंगे इसका आंसर नॉट पॉसिबल, वैल्यूज़ फाइंड करना नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, इनको भी याद रखेंगे, इनको भी याद करना है, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज को अप्लाई करके कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये भी हमें देखना है। अब आप इसके क्वेश्चन ट्राई करना। थैंक यू सो मच।